Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Cantor Publishers video lessons. Before starting the lesson, dear students, you should have with you class 3 English textbook, workbook and resource pack. Resource pack is for parents and teachers guidance. You can also download it from Cantor Publishers official website. We are going to start our lesson from Unit 6. Can you help us please? And our topic is reading comprehension. SLOs of this lesson are: understand the meaning of natural environment, know the importance of nature in life, learn the importance of cleanliness, learn about the dangers of destroying the natural environment. Page number 35 of your textbook. Today we are going to read the story of a wheat grain. This is a very interesting story. This is about the importance of natural things and cleanliness. This is a very informative unit, and let's have a pre-reading activity here. Can you name items that are made from wheat? क्या आप उन चीज़ों के नाम बता सकते हैं जो गंदम से बनी हो? What is the name of the garden near your home? आपके घर के करीब जो गार्डन है उसका क्या नाम है? Have you ever visited any farm? क्या आप किसी फार्म पर कभी गए हैं? Page number 36 of your textbook. Let's start the unit. Can you help us please? Can you guess from this sentence here? This is a cry for help. क्या है? इल्तिजा है, मदद की. किसकी इल्तिजा है? Let's find out. I am a tiny seed of wheat grain. Tiny means छोटा. मैं एक छोटा सा बीज हूं. किसका? Wheat grain का, गंदम का. Today I shall tell you my life story. I shall also share with you all the joys and difficulties of my life. आज मैं आपके साथ अपनी जिंदगी की कहानी शेयर करूंगा और जितनी भी जॉय, खुशियां और डिफिकल्टीज, मुश्किलात जो मेरी जिंदगी में गुजरी हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा. I was born at a farm on a bright sunny morning. मैं एक फार्म पर एक चमकदार सूरज निकला हुआ था जिस दिन, सनी मॉर्निंग, उस दिन जो है पैदा हुआ. When I came into this world, the sun was shining brightly. जब मैं इस दुनिया में आया तो सूरज जो है चमक रहा था. And it was extremely hot, और बहुत ज्यादा गर्मी थी. The wind was blowing all around me. Blowing चल रही थी, हवा जो है मेरे आसपास चल रही थी. The sweet fragrance of my family member was in the air. Family members कौन थे? Other wheat grain, other seeds of wheat grain. Fragrance कहते हैं खुशबू को. और किस चीज की खुशबू आ रही थी? मेरे other family members की खुशबू भी मुझे आ रही थी हवा में. I found this world smiling, laughing and happy. मैंने इस दुनिया को क्या हंसते हुए, मुस्कुराते हुए और खुश पाया. At first, I was green in color. पहले मैं कलर में ग्रीन था. I drink water from the soil. मैंने मट्टी से पानी पिया. Soil मट्टी को कहते हैं. I took my food from the air. मैंने जो है हवा से अपनी खुराक ली. The sun gave me energy. और सन की वजह से मुझे एनर्जी, ताकत मिली. Then I grew up into a tall plant. फिर मैं एक बड़े पौधे में की शक्ल में क्या हो गया? बढ़ा. My friends were enjoying themselves hanging on to the small branches of it. I was very fresh and handsome. मेरे जो दोस्त थे, enjoying themselves hanging on to the small branches of it. मेरे जो दोस्त थे वो भी लटक रहे थे small branches पर. गंदम के दाने आप यहां देख सकते हैं. Small branches मतलब हल्की और लाइट थी. मैं बहुत फ्रेश और हैंडसम था. हैंडसम बहुत खूबसूरत था और फ्रेश था. द कलर ऑफ माई स्किन टर्न्ड गोल्डन ब्राउन. फिर मेरी जो स्किन का कलर है वो किस चीज में चेंज हो गया? गोल्डन ब्राउन कलर में. गॉड मेड मी ए स्मार्ट एंड गुड लुकिंग व्हीट सीड. खुदा ने मुझे क्या बनाया था? एक स्मार्ट और गुड लुकिंग व्हीट सीड बनाया था. बीज, व्हीट का बीज बनाया था. आई वॉज इंजॉइंग लाइफ विद माई फ्रेंड्स ऑन द फार्म. और मैं जो हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ फार्म पर अपनी जिंदगी इंजॉय कर रहा था. माई लाइफ वॉज पुट इन डेंजर वन डे व्हेन द लैंड ओनर बॉट द लैंड अराउंड माई फार्म. लेकिन मेरी जिंदगी उस वक्त खतरे में पड़ गई जब एक
लैंड ओनर ने क्या है, फार्म खरीद लिया. ही बिल्ट अ शॉपिंग मार्केट ऑन द लैंड विद इन अ फ्यू मंथ्स. और उसने ही बिल्ट शॉपिंग मार्केट क्या है, उसने बना ली कुछ ही मंथ्स में. द मार्केट वॉज सून फुल ऑफ फूड शॉप एंड रेस्टोरेंट. और मार्केट किस चीज से भरी हुई थी, फूड शॉप्स और रेस्टोरेंट से. रेस्टोरेंट जहां हम खाना खाते हैं. Soon the people started coming to the market for shopping. और जल्द ही लोग शॉपिंग के लिए मार्केट आने लगे. They buy things, eat food, have fun and throw their waste in shopping bags on the ground. वो लोग क्या करते थे, शॉपिंग करके चीजें लेते थे, खाते थे, फन करके, और जो है थ्रो देयर वेस्ट, जो कचरा होता था और शॉपिंग बैग्स होते थे, वो ग्राउंड पर फेंक देते थे. This condition gets worse when the wind starts blowing these plastic bags into the farm. लेकिन ये कंडीशन उस वक्त बदतरीन हो गई, वर्स बहुत बुरी हो गई, गेट वेरी बैड, जब हवा से वो प्लास्टिक बैग जो है उड़कर फार्म की तरफ आने लगे. These bags stop water getting into the soil. और इन बैग्स की वजह से क्या हुआ, पानी जो था वो जमीन में जाने से क्या हो जाता था, स्टॉप हो जाता था. ऑन माई नेबरिंग फार्म, मेरे पड़ोस का जो फार्म था, अ लॉट ऑफ न्यूली बॉर्न सीड डाइड व्हेन दीज प्लास्टिक बैग्स ब्लॉक देयर रूट्स. जो न्यूली बॉर्न सीड्स थे, जो नए बीज थे, वो क्या हो गए, इन प्लास्टिक बैग के ब्लॉकेज की वजह से उनकी जो जड़ें हैं वो क्या हो गई, कमजोर पड़ गई और वो मर गए. जड़ों को क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया उन प्लास्टिक बैग्स ने. तो उन तक पानी कैसे जाता, वो पानी कैसे पीते, सोइल से, मट्टी से. सम शॉपिंग बैग्स आल्सो ब्लॉक द सन रेज ऑन द एंड द विंड. और कुछ प्लास्टिक बैग्स ने तो सन रेज, सूरज की शुआओं को भी रोक दिया, जिससे पौधों को, बीजों को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है. अब पानी और रोशनी जब छिन गई और हवा भी बंद कर दी प्लास्टिक बैग्स ने, तो क्या हुआ, तो उन बीजों ने तो मर ही जाना था. People have also started burning their waste, garbage and plastic bags early in the morning. फिर लोगों ने कचरे को, प्लास्टिक बैग्स को क्या जलाना शुरू कर दिया हर सुबह. They no longer throw them in waste bin. और उन्होंने जो है, जो डस्टबिन्स होते हैं, वेस्ट बिन्स होते हैं, उसमें सामान फेंकना ही छोड़ दिया. Burning plastic bags creates black smoke which is dangerous for health. और प्लास्टिक बैग्स के जलने से क्या होता है, काला धुआं होता है, जो कि सेहत के लिए बहुत बुरा है. द ब्लैक स्मोक लीड्स टू एन अनहेल्दी इन्वायरमेंट. और काला धुआं किस चीज की तरफ लीड करता है, अनहेल्दी इन्वायरमेंट की वजह से. ऐसा माहौल जो हमारे लिए क्या होता है, अनहेल्दी होता है. ब्लैक स्मोक जब हमारे सांस की नाली से अंदर जाएगा जिस्म के अंदर, तो क्या है, खराबी पैदा करता है. आई हैव गॉन वीकर डे बाय डे. और मैं दिन गुजरने के साथ साथ कमजोर होता गया. आई डोंट गेट इनफ वाटर एंड फूड. मुझे ज्यादा पानी और खुराक नहीं मिलती. माई कलर हैज डिम्ड. मेरा कलर भी डिम्ड हो गया. पहले मैं गोल्डन जो है ब्राउन कलर का था. एंड माई हेल्थ हैज बीन इफेक्टेड. और मेरी हेल्थ बहुत इफेक्ट हुई, असर पड़ा मेरी हेल्थ पर. माई फ्रेंड एज वेल एज द वीट सीड ऑन द नेबरिंग फार्म्स आर फेसिंग द सेम प्रॉब्लम्स. और मेरे नेबरिंग फार्म में जो मेरे फ्रेंड्स थे, बाकी वीट सीड्स, वो भी सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे थे. दिस इज अ डिफिकल्ट सिचुएशन टू लिव इन. ये क्या थी, एक डिफिकल्ट सिचुएशन थी रहने के लिए. आई रिक्वेस्ट ऑल ह्यूमन बींग्स टू प्रोटेक्ट एंड सेव द नेचुरल एनवायरनमेंट. प्लीज थ्रो योर वेस्ट एंड प्लास्टिक बैग्स इनटू वेस्ट बीन्स व्हिच कैन बी कैरिड टू गार्बेज डंप्स. वो क्या करता है, मैं रिक्वेस्ट करता हूं टू ऑल ह्यूमन बींग्स कि क्या करें, नेचुरल एनवायरनमेंट की हिफाजत करें और उसको महफूज रखें. प्लीज थ्रो योर वेस्ट. और अपना जो गंद है, प्लास्टिक बैग्स इनटू वेस्ट बिन. और वेस्ट बिन में क्या है, प्लास्टिक बैग्स फेंकें. विच कैन बी कैरिड टू गार्बेज डंप्स. गार्बेज डंप जो कचरों का ढेर है, वहां तक ये वेस्ट बिन जो है ले जाए जाएंगे और वहां पर सारा गंद जमा होगा. सो व्हाट वी हैव लर्न इन दिस lesson, in this unit here, that we should protect our environment. It is very important to protect and save our environment because unhealthy environment lead to sickness, illness,
We can't breathe properly. Fresh air will be blocked if we throw garbage in the surroundings in our environment. If we pollute it, we will no longer be able to inhale the clear air. तो अपने environment की हिफाजत और इसको बचाना बहुत ज़्यादा important है, क्योंकि जब environment साफ रहेगा तो हम हवा में सांस ले सकेंगे, हमारी फूड जो है, हमारा जो खाना है वो साफ सुथरा होगा. हमें अपना गंद जो है वेस्ट बिन, डस्टबिन में डालना चाहिए, जो कि बाद में वहां से वेस्ट डम जो कचरे के ढेर पर ले जाके उसको ज़ाया कर दिया जाएगा. प्लास्टिक बैग्स इधर उधर नहीं फेंकने चाहिए. कोशिश करें कि हम प्लास्टिक बैग्स का यूज़ ना करें, जिसकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट गंदा होता है. यू कैन फाइंड द मीनिंग्स ऑफ द डिफिकल्ट वर्ड्स हियर इन द वर्ड बैंक. Let's do the exercise of it. Question 1 here. Who is telling its life story? Yes, of course, the wheat grain seed is telling you the life story. What is the food of a wheat seed? जो wheat seed है उसकी food क्या होती है? Yes, water from the soil, and he also get his food from the air. Whose life is in danger? The life of the wheat seed and his friends' lives were in danger. Question 4. What do the people throw on the ground? The garbage, their waste. The fifth one. What is the message in this story? इस story से हमें क्या message मिलता है? इस story से हमें यही message मिलता है that we should protect our environment. We should not throw the garbage on the ground, and we should throw the garbage into the waste bins. Page number 38, the remaining part of your exercise. Question 2, learn these words from dictation and make meaningful sentences in your notebook. You have to find the meaning of these words from the dictionary and you have to use them in your meaningful sentences. Punctuation का बहुत ख्याल रखना है. पहले word का पहला letter आपका capitalize करना है आपने, और at the end of it आपने full stop भी लगाना है, और grammatical mistakes का भी ख्याल रखना है. Question 3, circle the items that we get from wheat grains. Wheat grain से, जो गंदुम के दाने से हमें जो चीज़ें मिलती हैं, जो आइटम्स तैयार होते हैं, उसको आपने सर्कल करना है. फॉर एग्जाम्पल ब्रेड जो कि हम खाते हैं वो भी wheat grain से बनता है. फ्लोर, buns, yes, cereals, biscuits, noodles, yes, मैकरोनी, रोल्स किससे बनते हैं? फ्लोर से. तो ये सारी चीजें आपकी हो गई. सैंडविच व्हीट ग्रेन से. ये सारी चीजें जो है हमारी व्हीट ग्रेन से हासिल होती है. ये सारे आइटम्स खाने के, इनमें कहीं ना कहीं क्या है, व्हीट ग्रेन जो है उसका आटा जो है यूज होता है. Question 4 here. Mark the right answer from the given choices. The first one has been done for you. We have been given sentences with the choices here. You have to choose the right one here. Which product is destroying the environment? कौन सी प्रोडक्ट जो है environment को हमारे खराब कर रही है? Food, grain, rice. Yes, the plastic bags is here. Second one, what do the people throw on the ground in the market? Paper, waste, toys, shoes. Of course, waste here. Third one, what is created when plastic bags and garbage is burned? क्या चीज क्रिएट होती है जब प्लास्टिक बैग्स और गंद को जो है जलाया जाता है? ब्लैक स्मोक, ऑक्सीजन, फ्रेश एयर, क्लाउड्स. यस, ब्लैक स्मोक. वी हैव रेड इट इन योर टेक्स्ट बुक. दिस इज योर क्लास टास्क फ्रॉम वर्कबुक. क्वेश्चन नंबर 3 here. Complete the paragraph by adding the word in it. Words are given below. Eid, Muslim, festival, enjoy, wear, mourning, prepare. Okay, this is the paragraph about Eid al-Fitr. We have to choose the right words from this word bank here and fill the blanks. Celebration 2 in a year. Okay. Eid. Celebrate 2. What will be the right word here? Yes, Muslims celebrate. 2. Yes, Eid in a year. Eid al-Fitr is a religious festival. My mother prepares sweet dishes
In the morning of the first day, we wear new clothes. We enjoy ourselves on Eid. Question 4 here, speaking and writing section here. Tell the names of the 5 things that are made with flour and write them below. आपने 5 ऐसी चीज़ों का नाम बताने हैं जो आटे से तैयार की जाती हैं. ये है हमारे पास 5 चीज़ें. अब इसके नाम हम लिख सकते हैं. कौन कौन से हैं आटे से जो तैयार होती हैं? केक हो गया आपका, नूडल्स हो गई, ब्रेड हो गई, yes, macaroni, and the last one is what? Yes, biscuits. This is your home task from workbook, page number 28. Find out the answer of the following questions from the unit with the help of your classmates. These questions are from your unit 6. We have just read now. उसको दोबारा से पढ़ें और इन क्वेश्चंस के आंसर आपको वहीं से मिलेंगे. And it's very easy for you to attempt. I hope you have enjoyed my lesson. Thank you.